प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे पर हैं, जहां पीएम 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले केदारनाथ पहुंचेंगे और करीब 8:30 बजे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करीब 11:30 बजे पीएम बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगे और इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान पीएम गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम यहां करीब 1,000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। With various people over here, the pilgrims, they basically stated that they had issues in such a cold weather coming from Gaurikund towards Kedarnath, and if ropeway is being constructed, then it will be very helpful for the people. Now these are the scenes from Kedarnath. Look how exactly the Kedarnath temple has been decked up. Now we know for a fact that every time when Prime Minister comes to Kedarnath, he basically says that मैं आया नहीं हूँ, मुझे बाबा केदार ने बुलाया. He has his respect. He has all his prayers for Baba Kedarnath, and we know for a fact that after this he will be going to Badrinath, and in Badrinath he'll again be laying the foundation stone of the Hemkund Sahib Badrinath ropeway. So that will also be very, very important for the pilgrims to go to Hemkund Sahib or to Badrinath. Now, Uttarakhand is a state of religious tourism. Uttarakhand's economy majorly depends on the religious tourism, the Char Dham Yatra. And after Prime Minister Narendra Modi has come to power, we have seen that how the corridor of this particular area it has been completely revamped. The Badrinath corridor revamp is being taking place, the Gangotri, Yamunotri. So when all these things happen, then it's also beneficial for the people whose livelihood depends on the religious tourism. So these are the scenes over here. These are the beautiful scenes over here at Kedarnath, snow-filled mountains. It's very cold over here, but Prime Minister Narendra Modi, what we believe, has reached on time, and in some time from now, he will be performing Rudrabhishek of Baba Kedarnath. And also, Prime Minister has all his devotion towards Adi Shankaracharya, and we know that how there's the Samadhi of Adi Shankaracharya just few meters away from the Kedarnath temple. So he will also be visiting over there, and he will be paying his respects to Adi Shankaracharya. So, and after that, the foundation laying ceremony will take place. So as of now, what we are being told by the sources is that the Yatra, the Kedarnath Yatra, is being put on halt, given the fact there is inclement weather, given the fact there is Prime Minister's visit, because yesterday massive snowfall was recorded in Kedarnath, and also rain. So as of now, the Yatra has been stopped. People are not being allowed to move from Gaurikund towards Kedarnath as we speak. So we'll see that when Prime Minister leaves, whether the pilgrims would be allowed or not. But massive security arrangements are in place, and you can see behind me that how exactly the Kedarnath temple is all decked up for Prime Minister Narendra Modi's visit. Back to you in studio, Amita. तो सीधी तस्वीरें आप केदारनाथ से देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि इस केदारनाथ के मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बेहद अहम विजिट है। उत्तराखंड के दौरे पर हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ का वे दौरा करेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले केदारनाथ पहुंचेंगे। केदारनाथ की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और करीब 8:30 बजे वे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 11:30 बजे पीएम बद्रीनाथ पहुंचेंगे और इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान पीएम गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
मूल मंत्र है और उस मंत्र को वो चाहे वो धार्मिक स्थल हो, सामाजिक स्थान हो, कोई गांव, जैसा कि ये पता है हम सबको कि वो यहाँ के बाद बद्रीनाथ जाएंगे, उसके बाद माना जाएंगे और वहां जाकर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। तो विकास का जो एक मॉडल है वो माना के रूप में भी सामने आएगा और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार फिर से एक सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हमारे कैमरे में जैसे ही कैद होता है, देखिए गड़गड़ाहट तो आपको हेलीकॉप्टर की सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये देखिए पीछे हम देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर अब लैंड कर रहा है और वक्त बहुत ही कम और नजदीक आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जब आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आने लग जाएंगे, वो हमारे कैमरे में दिखने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर जो लैंड करता हुआ और अब यहाँ लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो ऊपर की तरफ बाबा के मंदिर की तरफ आएंगे और पैदल ही आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक उनकी जो यात्रा रही है उसमें हमने देखा है कि वो ये जो 700 से 800 मीटर की दूरी होती है उसको वो पैदल ही तय करते हैं, इसलिए नीचे से हेलीपैड से मंदिर तक आने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन देखिए हमने कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था है, चाहे वो भोले में हो, शिव में हो और शक्ति में हो, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आस्था और अपने प्रतीकों को लेकर बहुत सजग रहते हैं और इसीलिए जब वो कहीं इस तरह के स्थान पर जाते हैं जो धार्मिक स्थान होते हैं तो उनकी वेशभूषा जो होती है वो भी उसी तरीके की होती है। आज ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम जब पहुंच रहे हैं, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनकी वेशभूषा क्या होगी, वो किस परिधान में यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आज यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करने के साथ साथ नंदी से आशीर्वाद लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है, जो उनका स्थान है, जो ठीक इस मंदिर के पीछे है, वहां पर भी जाते हैं और वहां पर भी वो बैठकर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और हम देखते हैं कि थोड़ी देर वो ध्यान में हमें नजर आते हैं और मंत्रोच्चार करते हुए भी नजर आते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि वहां बैठकर भी उन्होंने मंत्रोच्चार किया था। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 4 वेदों को कैसे पूरी दुनिया भर में या फिर लोगों तक पहुंचाया जाए उसको लेकर पूरे देश भर में वो घूमे, उन्होंने भ्रमण किया और सबसे आखिर में वो कैलाश पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत पर और कैलाश की गोद में ठीक वहां पहुंचते हैं जहां पर केदारनाथ बाबा का दरबार होता है। और यहां पर आकर जब वो देखते हैं कि यहां जो मंदिर है उस मंदिर को एक बार फिर से जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, तो ऐसा माना जाता है कि 506 ईसा पूर्व जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इसके बाद अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसमें जिक्र है कि पांडव के जो पौत्र थे उन्होंने आकर इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था और इसका जीर्णोद्धार कराया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थान का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, ज्योतिर्लिंग जो है 12 वो अपने स्थान पर डटे रहते, खड़े रहते हैं और ये कहा जाता है कि शिव के जो ये तमाम स्थान हैं, तमाम आपदाओं के बावजूद ठीक अपने मुख्य स्वरूप में रहते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। हमने भी देखा था कि देखिए यहाँ पर भीमशिला को लेकर आपने जरूर कहानी सुनी होगी कि जब आपदा आई थी और ऊपर पहाड़ से जब पानी के साथ साथ मलबा नीचे आ रहा था तो वो भीमशिला इस मंदिर के ठीक पीछे पहुंच जाता है और मंदिर को होने वाले नुकसान से वो भीमशिला बचाता है। तो ये बाबा की लीला है, ये बाबा की अपरंपार शक्ति है जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, समझा है और इसीलिए देखिए ये लगभग 3550 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ ये स्थान है, लेकिन बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां हैं ये, यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर साल बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड संख्या में जो 4 धाम के यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 41 लाख लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए अभी तक आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं में से एक होंगे जब वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। और जो तस्वीर हमें कुछ ही देर में दिखाई देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जैसे ही देखिए अभी हेलीकॉप्टर हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं जैसे हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और यहाँ दिखाई देंगे, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो है वो उनकी चहलकदमी बढ़ गई है, सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से पुख्ता किया जा रहा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा घेरा है और सुरक्षा कर्मी है वो अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैद हो गए हैं। यहाँ पर केदारनाथ का भजन भी हमें सुनाई दे रहा है और आगे देखिए ये जो
घंटी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वो इस घंटी को जरूर बजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप घंटी बजाते हैं। तो ये जो ठीक मुख्य द्वार के सामने, केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने और नंदी के पीछे जो ये घंटी लगी हुई है, प्रधानमंत्री आते हैं तो इस घंटी को भी स्पर्श करते हैं, बजाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए पहुंचने वाले हैं मंदिर में। यहाँ पर वो पूजा करेंगे और पूरा जो विधि विधान है और विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो आगे का कार्यक्रम है वो शिव के भक्तों के लिए है, यानी कि केदारनाथ के भक्तों के लिए। और वो रोप वे का जो प्रोजेक्ट है उसका वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। आगे का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बद्रीनाथ का है और बद्रीनाथ में फिर से वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे विधि विधान से। और उसके बाद वहाँ कुछ योजनाओं को वो लेकर जा रहे हैं, जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, लोगों को सौंपेंगे और उसके बाद फिर माणा गांव जाएंगे। अनुराग, केदारनाथ से सीधी तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हो चुका है और कुछ ही देर में वे केदारनाथ मंदिर में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। And the visit, Amitabh, you see, when a Prime Minister comes on the ground in a hilly area in Char Dham Yatra and gives out a message that we want to boost religious tourism, how we want to make roads better, we want to provide employment to the local youth, then that is where you understand that how the PM is thinking about the people of Uttarakhand, because we know that how if all these areas will be developed, if there would be a good all-weather road connectivity, the road connectivity would be there, the ropeway would be built. In the end, people of Uttarakhand will benefit with all the employment, and that is very, very necessary. So, the first visit of Prime Minister Narendra Modi today is at Kedarnath, and after this he will be going to Badrinath. केदारनाथ से आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी मोहित और विद्यानाथ वहां से आपको सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वे पूजा अर्चना करेंगे केदारनाथ मंदिर में। केदारनाथ मंदिर जिसकी बेहद अहमियत है हिंदू धर्म में, खास तौर पर आपको बता दें पूरे उत्तराखंड में 200 से मेरे सहयोगी विद्यानाथ सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पूरी अपडेट आपको केदारनाथ से दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आने लग जाती है। हालांकि अभी तक रिकॉर्ड 41 लाख लोग इस बार चार धाम की यात्रा के लिए आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चार धाम की यात्रा जो होती है वो सबसे पहले केदारनाथ माना जाता है, वहीं से शुरू होती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा होती है और इसीलिए भक्त जो हैं जो चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं। अभी लगातार जो निर्माण का काम चल रहा है उस निर्माण के काम के जरिए लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन 2013 में जो त्रासदी आई थी उसके बाद तस्वीर इतनी बदल सकती है ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि हम जब यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जो भक्त आए हुए हैं यहाँ पर, जो बाबा के दर्शन करने के लिए लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर चीजें अचानक इतनी तेजी से बदलेंगी उनको अंदाजा नहीं था। क्योंकि देखिए लगातार हम ये देखते रहे, ये परिपाटी चलती रही है। जब भी इस तरह की कोई त्रासदी आती है तो सबसे पहले उस त्रासदी को लेकर जांच पड़ताल की जाती है, उसके पुनर्निर्माण को लेकर प्लान बनाते आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। विद्यानाथ और मोहित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं केदारनाथ से, पूरी अपडेट उनसे हम लगातार देते रहेंगे।